Now, let's focus on the fourth method of signal design, that is the IRC guidelines method. And it is somehow similar to the approximate method which we have already covered in the last lecture. The step number one is to the pedestrian green time required for the major and minor roads are calculated based on the walking speed of 1.2 meter per second and initial walking time of 7 seconds. Okay, these are the minimum green time required for the vehicular traffic on major and minor roads respectively. So basically the pedestrian green time required for the major and minor roads are calculated assuming the pedestrian walking speed of 1.2 meter per second and providing an initial walking time of 7 seconds. Okay, the second step would be the green time required for the vehicular traffic on the major roads is increased in proportion to the traffic on the two approach roads. Okay. The third step is to calculate the cycle time after allowing a amber time of 2 seconds each. ठीक है, फिर उसके बाद आपका एम्बर टाइम निकल जाएगा तो आप जो है साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. द टोटल साइकिल लेंथ इज कैलकुलेटेड एज ग्रीन प्लस एम्बर GB plus AB. Okay. Immediate higher multiple of 5 seconds is taken as the cycle time and additional seconds may be appointed in green time in proportion to critical lane volume on two roads. जैसे हमने पिछले अप्रोक्सीमेट मेथड में किया था कि जो हम लोग ग्रीन टाइम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, और जो ऑप्टिमम साइकिल जो टाइम आ रहा था उसमें जो वेरिएशन हो रहा था इमीडिएट हायर हमने 5 मल्टीपल लिया था, जो डेविएशन हो रहा था उसको फिर हमने ग्रीन टाइम्स में रीडिस्ट्रीब्यूट किया था अकॉर्डिंग टू दी ट्रैफिक ऑन अप्रोच रोड्स. ओके, नाउ minimum green time required for clearing the vehicles arriving during a cycle is determined for each lane of approach road assuming that the first vehicle will take 6 seconds and the subsequent vehicles of the queue will be cleared at the rate of 2 seconds. तो मिनिमम ग्रीन टाइम जो हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे एक किसी पार्टिकुलर साइकिल लेंथ में, अगर व्हीकल जो है वो क्लियर करना चाहे तो कितना ग्रीन टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा. उसके लिए जो फर्स्ट व्हीकल है इट इज़ एज्यूम्ड दैट द फर्स्ट व्हीकल यूज टू टेक 6 सेकेंड्स एंड उसके बाद जो उसके क्यू में जो व्हीकल्स होंगी पीछे में, ठीक है, दैट वुड बी क्लियर्ड एट द रेट ऑफ 2 seconds. ओके, द मिनिमम ग्रीन टाइम फॉर vehicular traffic is taken as 16 seconds. This is important, somehow asked in the objective examinations. Thereafter, we put a check for the optimum cycle time using the Webster formula. तो वेबस्टर ने जो फॉर्मूला दिया था ऑप्टिमम सिग्नल टाइम का, उससे हम लोग चेक करेंगे कि वेदर दिस optimum cycle time which we have calculated is sufficient as per as the Webster formula is concerned or not. Okay, this cycle time should be sufficient for both vehicles as well as pedestrians. If both the conditions of vehicular and pedestrian movements are satisfied, then optimized cycle time is adopted. Okay, now let's go for a numerical so as to make this theory more clear and precise. Okay, let us say at a right angle intersection of two roads, road 1 has 4 lanes with total width of 12 meter, road 2 has 2 lanes with total width of 6.6 meter. The volume of traffic approaching the intersection during design hour are 900 and 743 PCU per hour on the two approach roads of road 1. Okay, so on the approach road 1 to design our traffic volume has been given, that is 900 PCU per hour and 743 PCU per hour, whereas for the approach road 2 this is 278 and 180 PCU per hour for the approach road 2. Okay, design the signal timings as per as the IRC guidelines. Okay, so let's first calculate the design traffic because the two datas are given. So out of two datas we will be designing the things for the higher values. Okay, so design traffic on road 1 कितना हो जाएगा, जो अप्रोच रोड 1 पे जो ट्रैफिक है 900 and 743, higher of the two values, so higher of the two approach volume per lane
900 और 743 में कितना है, 900 इज द हाईएस्ट। ओके, सो डिज़ाइन ट्रैफिक कितना हो जाएगी, 900 डिवाइडेड बाई 2, ओके, दैट इज 450 PCU पर आवर। Now, if we talk about the design traffic on road 2, then this would be higher of the 278 and 180, okay, and this would be 278 PCU per hour, okay. Now, let's calculate the pedestrian green time for road 1. That was the step number 1, assuming the initial walking speed of 1 point pedestrian walking speed of 1.2 meter per second and initial walk period of 7 सेकेंड। ओके, सो पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम फॉर रोड 1 जैसा हमने अप्रोक्सीमेट मेथड में किया था, W डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 7, उस मेथड उस फॉर्मूले से हम लोग जो पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो रोड 1 जो है उसकी विड्थ है 12 मीटर की, तो 12 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 7, दिस इज 17 सेकेंड, दैट इज द पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम फॉर रोड 1। Pedestrian green time for road 2, that would be 6.6 divided by 1.2 plus 7, this would be 12.5 seconds. Okay, so we have calculated the pedestrian green time for road 1 and road 2. Okay, now let's calculate the green time. Okay, so green time for vehicles on road 2 is G2 is 17 second. ठीक है, लेट अस से हमने यहाँ पे जो ग्रीन टाइम जैसे हमने क्या किया था सबसे पहले कि हमें पता था कि जो ग्रीन टाइम है दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू दी अप्रोच ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो अप्रोच ट्रैफिक वॉल्यूम में देखते हैं कि हम लोग कितना ग्रीन टाइम जो रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने जब अप्रोक्सीमेट मेथड में कैसे सॉल्व किया था, G1 को मान के हमने G2 को कैलकुलेट G2 डैश को कैलकुलेट किया था। अगर G2 डैश की वैल्यू जो है वो जो मिनिमम वैल्यू उससे ज़्यादा आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम G2 को मान के फिर G1 डैश कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं ग्रीन टाइम फॉर व्हीकल्स ऑन रोड 2। लेट अस से G2 हम लोग मान लेते हैं 17 सेकेंड। ओके, G2 इज 17 सेकेंड, तो ग्रीन टाइम फॉर रोड 1 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी N1 अपॉन N2 इंटू G2। G1 डैश की अगर हम लोग बात करें तो G1 कितना हो जाएगा 450 अपॉन 270 इंटू 17। ओके, तो दिस इज बेसिकली 27.5 सेकेंड्स एंड दिस इज ग्रेटर देन G1 ऑफ 17 सेकेंड्स। ठीक है, तो मतलब हमारा जो G2 इज इक्वल टू 17 सेकेंड लिया दैट इज करेक्ट, एंड साइमल्टेनियसली इन प्रोपोर्शन टू द G2 इज 17 सेकेंड, our G1 is coming to be 27.5 seconds. Okay, now let's add 2 seconds of amber towards clearance amber and intergreen period for each phase. Okay, तो हम लोग जो है इंटरग्रीन फेज का और एम्बर का टाइम पीरियड जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो 2 प्लस ग्रीन पीरियड प्लस 2 दैट इज़ फॉर इंटरग्रीन पीरियड, फिर अगेन एम्बर, फिर ग्रीन टाइम, फिर इंटरग्रीन पीरियड। ओके, सो टोटल summation optimum cycle which we have calculated is found to be, cycle length is found to be 52.5 seconds. Okay, again what we will do, we will take the highest multiple of 5, तो highest multiple of 5 कितना होगा इसका, that is would be 55 seconds। तो हम लोग जो साइकिल टाइम लेंगे 55 सेकेंड लेंगे, और जो डेविएशन होगा इन दोनों में उसको हम लोग फिर से ग्रीन टाइम में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी अप्रोच ट्रैफिक वॉल्यूम, जैसा हमने अप्रोक्सीमेट मेथड में किया था। तो कितने का डेविएशन हो रहा है, 55 सेकेंड्स माइनस 52.5 सेकेंड्स, डेविएशन हो रहा है 2.5 सेकेंड्स का। अब 2.5 सेकेंड्स को हम लोग अकॉर्डिंग टू दी अप्रोच ट्रैफिक वॉल्यूम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, The additional 2.5 seconds may be apportioned to the green times of road 1 and road 2 का जो green time है उसमें simultaneously distribute कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रैफिक अप्रोच वॉल्यूम ऑन ट्रैफिक रोड, ट्रैफिक अप्रोच वॉल्यूम ऑन रोड 1 इज़ 450, तो 450 डिवाइडेड बाई 450 प्लस 278 इंटू 2.5 सेकेंड्स का डेविएशन हो रहा है। So green time is on road A is additional green time which would be required on road A is 1.5 seconds. Simultaneously GB will be calculated as 1 second. Okay, now what would be our net green time, that would the extra additional deviation which has been produced
इट इज़ एडजस्टेड इनटू द ग्रीन टाइम। तो पहले ग्रीन टाइम कितना था 27.5 ऑन अप्रोच सेक्शन 1, नाउ एक्स्ट्रा 1.5 सेकेंड इज adopted, hence total is 29 second. And simultaneously for the green time for the approach to 2, 17 was the earlier value and 1 second of extra adjustment has been made, that is 18 seconds. Okay, now व्हीकल्स अराइवल पर लेन ऑन रोड 1, ठीक है, तो कितना व्हीकल अराइवल हो रहा है रोड 1 पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 450 व्हीकल्स था, ठीक है, और 450 बेसिकली पीसीयू पर आवर था, और हमारे पास जो साइकिल टाइम हमने कैलकुलेट किया दैट इज़ 55 सेकेंड्स का, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स अराइव हुआ होगा, दैट इज़ 55 सेकेंड्स का अगर हमारे पास टाइम पीरियड है और 450 है ये, ठीक है, तो देन दिस वुड बी 8.2 पीसीयू। ओके, सो व्हाट वुड बी द मिनिमम ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग ऑफ द व्हीकल्स इज कैलकुलेटेड एज दिस एक्सप्रेशन, दैट इज कि फर्स्ट व्हीकल 6 सेकेंड ले रहा है, ठीक है, और बाकी के जो व्हीकल्स है उसके क्यू में है वो 2 सेकेंड्स ले रहे हैं, तो फर्स्ट व्हीकल 6 सेकेंड ले रहा है प्लस जो x1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 8.2 व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो मिनिमम ग्रीन टाइम कितना चाहिए हमें, 6 प्लस 8.2 माइनस 1 इंटू 2, दिस इज 20.4 सेकेंड। तो हमें जो मिनिमम ग्रीन टाइम चाहिए रोड 1 पे दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ 20.4 सेकेंड। साइमल्टेनियसली व्हीकल अराइवल्स पर लेन साइकिल ऑन रोड 2 इज कैलकुलेटेड, कितना ट्रैफिक है रोड 2 पे दैट इज 278 और कितना साइकिल टाइम है 55, तो हिंस 5.1 PCU vehicles are arriving on the road 2. Okay, so what would be the required minimum green time for this type of for this amount of traffic volume? That would be same above formula we apply, that is the first vehicle will take 6 seconds to cross and the other vehicles in the queue will take 2 seconds each. So 6 plus 5.1 minus 1 into 2 and this is 14.2 seconds. Okay, as the green time provided for the two roads by the pedestrian crossing criteria in step third above or higher than these values, the above design is safe. देखिए अब जो हमने पेडेस्ट्रियन सिग्नल से ये बेसिकली हम लोग जो ये डिज़ाइन कर रहे थे दिस वाज बेस्ड ऑन द पेडेस्ट्रियन सिग्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है, 29 और 18 सेकेंड, और ये वैल्यूज़ जो है 29 और 18 सेकेंड्स की ये मिनिमम वैल्यू जो है रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज़ द मिनिमम ग्रीन टाइम 20.4 सेकेंड और हमारा आया है 29 सेकेंड, मतलब सेफ़ है। मिनिमम ग्रीन टाइम रोड 2 पे आया हमारा 14.2 और हमें चाहिए था 14.2 बट हमारा जो सिग्नल साइकिल टाइम में है दैट इज़ 18 सेकेंड्स। इट मीन्स टू से कि as far as the pedestrian criteria is concerned our values are higher than the minimum green time, hence the design is safe. Okay, now next is to check the optimum cycle time as per as the Webster method is concerned. Okay, so how do we calculate the optimum cycle time, 1.5 L plus 5 divided by 1 minus y, and what is this L? L is the total lost time. How do we calculate total lost time per cycle? This is amber time per plus intergreen time plus time lost for initial delay of first vehicle into number of phases, ठीक है, तो 2 फेज का डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, तो टोटल लॉस टाइम कितना हो रहा है, एम्बर टाइम क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकेंड्स, इंटरग्रीन टाइम 2 सेकेंड्स, टाइम लॉस्ट फॉर इनिशियल डिले कितना है 4 सेकेंड्स का, ठीक है, तो हमारा हो गया 2 + 2 + 4 इंटू 2 फेजेज है तो टोटल आ गया 16 सेकेंड, तो एल की वैल्यू हमारी आ गई 16 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 1 माइनस वाई में क्या चाहिए, व्हाट इज़ वाई, वाई इज़ दी समेशन ऑफ दी रेशियो ऑफ नॉर्मल टू सैचुरेशन फ्लो, ठीक है, बेसिकली Q अपॉन S का जो समेशन होगा Q1/S1 प्लस Q2/S2 प्लस Q3/S3 दिट इज़ इक्वल टू Y1, दिस इज इक्वल टू Y2, दिस इज इक्वल टू Y3 एंड समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू Y। ओके, तो हम सबसे पहले सैचुरेशन फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो सैचुरेशन फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, द सैचुरेशन फ्लो वैल्यूज़ में बी एज्यूम्ड एज 1850, 1890, 1950, 2250, 2550, 2990 PCU per hour for the approach roadway width. This is the IRC recommendation. Okay, तो
जब आपका कर्व से सेंटर लाइन तक ये जो पेमेंट विड्थ दिया हुआ है, ठीक है, जब ऐसा दिया होगा तो हम लोग ये सैचुरेशन फ्लो मान लेंगे, ठीक है। जब विड्थ 5.5 से ऊपर होगी तो हम लोग सैचुरेशन फ्लो इज एज्यूम्ड एज 525 PCU पर आवर पर मीटर विड्थ। ओके, तो देखिए हमारा जो पेमेंट था बेसिकली वो 12 मीटर का विड्थ था टोटल, ठीक है। तो टू लेंस में उसको अगर हम लोग जो वन डायरेक्शन में अगर डिफाइन कर दें, ठीक है, तो वो बेसिकली वो 4 लेन का समेशन दिया हुआ, ठीक है, ये है, ठीक है, और ये है, मतलब ये इधर की ट्रैफिक है, इधर की, तो हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो देखिए 6 मीटर आ रहा, मतलब 5.5 मीटर से ज़्यादा है। अगर एक स्ट्रेच की बात करें, अगर ये टोटल जो है आपका ये 12 मीटर का है, ठीक है, तो हमारा जो रोड 1 आ रहा है दैट इज़ 6, ठीक है, तो 6 आ रहा है, 6 मीटर उसका हाफ आ रहा, मतलब 5.5 से ज़्यादा है। तो फॉर विड्थ अबव 5.5 मीटर द सैचुरेशन फ्लो में बी एज्यूम्ड एज 525 PCU पर आवर पर मीटर विड्थ, ठीक है। तो जब विड्थ 5.5 मीटर से ज़्यादा होगा तो हम इस तरह से सैचुरेशन फ्लो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा 6 मीटर है, तो 525 इंटू 6 इज़ 3150 PCU per hour. So this is the saturation flow for the road 1. Now let's calculate the saturation flow for road 2. How do we calculate? अब हमारा देखिए सेकेंड रोड जो है वो हमारा कितना है, 6.6 मीटर का है, ठीक है। तो हमें कितना का रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ 3.3, उसका हाफ 3.3 मीटर का। अब देखिए 3 के लिए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है 1850 की, 3.5 के लिए दी है, तो 3 के लिए 1850 PCU पर आवर सैचुरेशन फ्लो दिया है, 3.5 के लिए 1890 दिया है। हमारी रिक्वायरमेंट है 3.3 मीटर के लिए। तो क्या हम इंटरपोलेशन से बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। सो 1850 प्लस 1890 माइनस 1850 डिवाइडेड बाई 3.5 माइनस 3.0 इंटू 3.3 माइनस 3.0। तो यहाँ से आप जो कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 1874 PCU पर आवर। सो दिस इज द सैचुरेशन फ्लो फॉर रोड 2 and this is the saturation flow for road 1. Basically these are the IRC recommendations for calculating the saturation flow if the data is not given. Okay, now let's calculate the value of normal to saturation flow, ठीक है। नॉर्मल टू सैचुरेशन फ्लो का रेशियो निकालेंगे। तो नॉर्मल फ्लो कितना है, 900 PCU पर आवर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, दैट इज़ 900 PCU पर आवर, ठीक है। तो हम लोग हायर वाली वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। तो 900 अपॉन हमारा जो है रोड 1 पे सैचुरेशन फ्लो कितना है, 3150 PCU पर आवर। सो 900 डिवाइडेड बाई 3150, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आई 0.286। साइमल्टेनियसली y2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल टू सैचुरेशन फ्लो। तो अप्रोच रोड 2 पे 278 अपॉन 100 1874, दिस इज दी सैचुरेशन फ्लो फॉर द रोड 2। तो यहाँ से y2 की वैल्यू मिली 0.148। हमें टोटल y निकालना है, दैट वुड बी समेशन ऑफ y1 प्लस y2। तो 0.286 प्लस 0.148, दिस इज 0.434। अब अपना जो वेबस्टर मेथड का फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और ऑप्टिमम साइकिल टाइम निकाल के चेक करिए। तो क्या फॉर्मूला है, C0 इज़ 1.5 L प्लस 5 बाई 1 माइनस वाई। एल हमने यहाँ पे टोटल लॉस टाइम कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 16 सेकेंड। सो 1.5 इंटू 16 प्लस 5 बाई 1 माइनस वाई, ये हमने कैलकुलेट किया 0.434। तो ऑप्टिमम साइकिल टाइम हमारा है 51.2 सेकेंड्स, ठीक है। बट हमारा जो हमने अडॉप्ट किया है 55 सेकेंड जो कैलकुलेट किया है, हेंस द वैल्यू ऑफ 55 सेकेंड्स इज एक्सेप्टेड। ओके, नाउ यू कैन प्लॉट दिस लाइक दिस। ग्रीन 29 है, एम्बर 2 है, रेड 22 है, इंटर ग्रीन टाइम 2 है। सो टोटल साइकिल लेंथ कितना आ रहा है, 55 सेकेंड्स। साइमल्टेनियसली रोड 2 पे ग्रीन टाइम 18 है, एम्बर 2 है, 33 रेड टाइम है और 2 इंटर ग्रीन टाइम, टोटल 55 सेकेंड्स आ रहा। तो इस तरह से जो है IRC मेथड्स के जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है सिग्नल डिज़ाइन किया जाता है। ओके, सो दिस